Good afternoon, everybody. Myself, Brajesh Kumar Swarnakar, Assistant Director, MSME DI Indore. Uh, uh, in the beginning of this program, I want to welcome my Institute Joint Director, Shri DC Sahu Saab, and joining this program from Medicare, Sarita Kansal Madam, and other faculties, and my dear students. This program, it's called like ENLAP, National Level Awareness Program, is being organized by Office of DC MSME, Ministry of MSME, Government of India. And this program is basically organized to create awareness amongst the prospective entrepreneurs in a manner so that they could understand what Ministry of MSME is doing, right? So before going through the program, I will just want to share what's the framework of the program is like. First, I will let you know about what my organization is and what basically it does for the promotion and development of MSMEs and the prospective entrepreneurs. And then we will show 3 videos over the same thing which I am telling you, like MSME, a motivational speech, a video is there, and a video is there on schemes of MSME, and other third one video is about success stories. And intermittently, my director sir will also join, and he will let you know about what MSME is doing and how this Office of DC MSME will help you out in setting up of your enterprise, right? So first, I will give a introductory speech about what MSME is. This Office of DC MSME basically comes under Ministry of MSME, and Ministry of MSME has basically 4 verticals. And the first vertical is Office of DC MSME, second vertical is Khadi Village Industry Commission, third vertical is Square Board, and fourth vertical is NSIC. So these are the 4 branches of Ministry of MSME. And basically, this Office of DC MSME comprises of it has pan-India offices like MSME DI Indore is the head office of this Madhya Pradesh. Likewise, we have at least one office in each capital of India. So in this manner, we have around 30 MSME development institutes and 28 branch MSME DIs. As well as we have a set of like other training institutes as well, right? So this MSME DI basically is a field office, and it will help the entrepreneurs and the prospective entrepreneurs as well as the this existing entrepreneurs through its set of schemes. And we have a different range of schemes that you will get to know in the coming session. And as far as this prospective entrepreneurs are concerned, we basically provide consultancy services. Suppose you want to start your enterprise, then you can reach to our office, and here you can get the consultancy, like techno-managerial consultancy, how you can go about starting your enterprise, and how this institute through various schemes will help you out in setting up your enterprise. Along with this office schemes, we will also guide you regarding the state government schemes, and because these state government schemes has many they are providing financial assistance through their schemes as well. So if you reach to our office for starting your enterprise, then we can provide you this techno-managerial consultancy. As far as MSMEs are concerned, MSME definition has been recently revised last year in the month of June. And now the MSMEs who want to establish their enterprise, they have to register themselves in the form of Udyam registration. So this is totally online portal where you can get yourself a unit, get your unit registered through in our portal. So this MSME registration will help you out in getting this financial support from banks, and
if you want to get any of the help from any of the like state government or government of India, you need this MSME certificate, and that is called Udyam registration. So this process, like Udyam registration process, is very easy, and it takes only 5 minutes or so to get your unit registered over there. So likewise, we have many schemes basically for the promotion and development of existing enterprises. We have n number of schemes that ranges through like financial support, technical support, and all that. So this is all about like what MSME is doing in brief. And one KVIC, this branch is there in our ministry, and you might have heard of that PMEGP scheme, Prime Minister Employment Generation Program. And through that PMEGP scheme, if you want financial assistance in setting up of your enterprise, you can get the loan of up to 25 lakhs with Government of India subsidy or grant. So suppose you have a project in your hand, of 10 lakh of rupees, then you can get financial assistance through PMEGP of up to rupees 3.5 lakhs. That means 3.5 lakhs will be provided by Ministry of MSME as a subsidy amount. So likewise, you can calculate this subsidy amount for 25 lakhs of rupees project. So this is a brief introduction about my Ministry of MSME and what MSME Development Institute and Office of TCMSME is doing. Now I will we will move through motivational video, and I will play that video for you, and definitely. Okay. My director sir wants to speak. No. What is the procedure? Okay. I would request Shri DC Sahu Sahab to speak something about it. Respected dignity on the dais, successful entrepreneur Pallavi Vyas, and dear prospective entrepreneurs. I think more than 100 entrepreneurs have been attended today this conference. First of all, I want to say that what is entrepreneur? आप क्यों एंटरप्रेन्योर बनना पसंद करेंगे? आपके पास क्या क्वालिटी है एंटरप्रेन्योर बनने की? तो जो क्वालिटी एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिस्क फैक्टर, एंथुजम, dynamic leadership, dedication, devotion, and determination, and change the product according with life. किसी भी इंडस्ट्री का लाइफ स्पान हार्डली 5 to 7 years, 10 years मैक्सिमम रही. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, चेंज होगी, you have to change your machinery, infrastructure, and update according to your present need. Then you may become as a successful entrepreneur. आप चाहोगे कि आज हमने 20 साल पहले इंडस्ट्री खोली थी, आज भी सेम इंडस्ट्री पे काम कर लेंगे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव. आपको हैव टू चेंज, तभी आप सक्सेस हो सकती है. इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ की एंटरप्रेन्योरशिप होती है. स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, छोटे उद्योग लगाइए. इन्वेस्टर एंटरप्रेन्योर्स, टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स, ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स जो है प्रेजेंट में चल रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग, होम डिलीवरी कॉन्सेप्ट, दिस इज अ न्यू थॉट. तो इस पर भी काफी अच्छा स्कोप है. और आईटी फील्ड के जो बच्चे हमारे हैं
इसमें काफी एंटरप्रेन्योरशिप करके और अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं और अल्टीमेटली सक्सेस भी हो रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत जरूरी है न्यू आइडिया, इनोवेशन, मैनेजरशिप, अपॉर्चुनिस्ट एंड अदर थिंग्स। जैसा कि भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ावा के लिए नंबर ऑफ स्कीम्स लॉन्च की हुई है और जिसमें स्टार्टिंग से लेके मतलब स्टार्टिंग मतलब आपको फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप के प्रमोशन के लिए क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती है और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्या फैसिलिटीज मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। नंबर ऑफ स्कीम्स लॉन्च की हुई है, हमारी वेबसाइट पे दी हुई है। इसको अदर वर्ड में बोला जाए तो इट इज नेकलेस ऑफ एमएसएमई। ये नेकलेस है एमएसएमई का जिसमें नंबर ऑफ ज्वेल्स कण लगे हुए हैं स्कीम के नाम पे। अब आप देखिए कि कौन सा ज्वेल्स कौन सा नग कण आपके काम का है, आप उसको दीजिए, उसको यूटिलाइज करिए, अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करिए और एज ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कन्वर्ट हो जाइए। अब जो स्कीम है हमारी, मैं सबसे पहले किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बेसिक 2-3 चीजों की जरूरत पड़ती है, फाइनेंस, मार्केटिंग, मैन मशीन मटेरियल। यदि इतनी अवेलेबिलिटी आपके पास है तो कोई भी इंडस्ट्री लगा सकता है। अब इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर का वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ सर्विस प्रोवाइडर को भी इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। इसलिए डिपार्टमेंट का नाम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हो गया। जो फैसिलिटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मिलेगा वही फैसिलिटी, वही ग्रांट अनुदान जो भी है सर्विस इंडस्ट्री को मिलेगा। सबकी कैटेगरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पीएमईजीपी स्कीम। ये हमारी बहुत ही बेसिक स्कीम है। ये आज से नहीं चल रही है, आई थिंक मोर देन 20 ईयर्स पहले से चल रही है। आज सन 84-85 के आसपास, 25 साल 30 साल पहले इस स्कीम में 20,000 रुपये लोन दिया जाता था। उस समय 20,000 रुपये की वैल्यू थी और लोगों ने उस समय भी 20,000 रुपये लेके अपने गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के उद्योग लगाए। आज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन के करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं। वर्तमान में इस स्कीम में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए मैक्सिमम 25 लाख रुपीज का लोन मिलता है। SC/ST वुमेन एंटरप्रेन्योर को 35% सब्सिडी मिलती है। जनरल कैटेगरी के लिए 20% मिलती है। इसी तरह सर्विस सेक्टर के लिए मैक्सिमम 10 लाख रुपीज मिलता है और 20%, 35% अकॉर्डिंग टू SC/ST एंड जनरल कैटेगरी, उसके अकॉर्डिंग उनको ग्रांट मिलता है, सब्सिडी मिलती है। ये बहुत ही बेसिक स्कीम है और नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इसी स्कीम का सहारा लेके अपने बिजनेस को ग्रोथ करते हैं, समय के अनुसार चेंज करते हैं, अपग्रेड करते हैं और विद इन 5 to 10 ईयर्स में करोड़ों का टर्नओवर कर एक अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। इसके बाद बड़ी इंडस्ट्री के लिए हमारे CGT SME स्कीम है, CLCSS है, ये 2 करोड़ का भी विजन है उसमें देने का। कोलेटरल फ्री लोन, मशीन खरीदेंगे तो 15% सब्सिडी उसमें है। वट में भी नंबर ऑफ स्कीम्स है। मार्केटिंग के लिए भारत सरकार ने, आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो डेफिनेटली मार्केटिंग कहाँ की जाए। मार्केटिंग 2 तरह से की जा सकती है। पहले तो आपको सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट करना पड़ेगा कि आप क्या बनाना चाहते हैं, दैट इज ए कमर्शियल आइटम, और यू वांट टू सप्लाई इन द गवर्नमेंट सेक्टर। यदि गवर्नमेंट सेक्टर में सप्लाई करना है, BSNL, रेलवे, NTPC, IOC, तो उनकी जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उनको फाइंड आउट करिए, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाइए और एज ए वेंडर रजिस्ट्रेशन होने के बाद या उनका जो टेंडर कॉन्सेप्ट है उसमें पार्टिसिपेट करके वहां भी सप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ प्रॉफिट और मार्जिन बहुत हो गवर्नमेंट सप्लाई में, लेकिन वो एक प्रोसीजर से होता है। एज एंड व्हेन जैसी रिक्वायरमेंट निकलेगी आपको मार्केटिंग वहाँ सप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज गवर्नमेंट सप्लाई चैनल हो गया।
और दूसरा चैनल हमारा है कमर्शियल आइटम। चाहे आप मार्केट में सप्लाई करेंगे साबुन, सोडा, अगरबत्ती, बेकरी प्रोडक्ट, नमकीन, व्हाटएवर नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, मोर देन 3400-3500 प्रोडक्ट है। उनमें से आप एक भी आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, हमको जो मार्केट में बेचना है तो आपको कॉम्पिटिट भी करना पड़ेगा सामने वाले से। यदि सेम क्वालिटी आप देंगे तो या सेम रेट पे देंगे तो डेफिनेटली इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। कोई आइटम बनता है उसको वैल्यू एडिशन के साथ, क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ आप मार्केट में लॉन्च करेंगे तो डेफिनेटली यू मे बी सक्सेस। सपोज दैट 420 पापड़ एक मार्केट में आता है, इंदौर का ही ब्रांड है, आप 422 या 421 बना दीजिए, एक और पापड़ बनाइए, लेकिन उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करिए, ना कि उसको कॉपी पेस्ट। यदि कॉपी पेस्ट करेंगे तो नो वैल्यू, और आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। वैल्यू एडिशन करेंगे तो डेफिनेटली यू मे बी सक्सेस। तो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी नेसेसरी। यदि मार्केट में सर्वाइव करना है तो विद क्वालिटी एंड वैल्यू एडिशन के साथ कॉम्पीट करना है। जैम के थ्रू गवर्नमेंट सप्लाई कर सकती है, गवर्नमेंट का पोर्टल है, पूरे CPSU मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट सारे आइटम जैम से परचेज करते हैं। आप जैम में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको बाकायदा वहाँ से DL बनाता तो ऑफर भी मिलेंगी। इसके साथ ही हमारे डोमेस्टिक ट्रेड फेयर मार्केटिंग प्रमोशन के लिए रखते हैं। दिल्ली में भी हमारा IIFT IIT है, एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है, 15 दिन का प्रगति मैदान में फेयर लगा है। इंदौर से भी हमने ऐसे 6 एंटरप्रेन्योर को भेजा था जिन्होंने अपने प्रोडक्ट वहाँ डिस्प्ले किए, जिसमें एक बच्चा तो ऐसा था, हार्डली 28 साल का है, जिसने अभी 2 साल पहले हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ली थी, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद उसने अपने यहाँ से कच्ची घानी का तेल, सरसों का और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, कच्ची घानी का वुडन चंदन, लकड़ी के द्वारा पूरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उसको बनाया इंदौर में, मार्केटिंग की, और PMEGP से लोन भी लिया था उसने, 12 लाख रुपए लोन भी लिया था। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना, उसको हमने दिल्ली भेजा, वो अपना प्रोडक्ट प्रगति मैदान दिल्ली में एक्सपोज कर रहा है। भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक कच्ची घानी का तेल, हो सकता है उसको 10-50 वेंडर वहां के मिल जाए, और देखते देखते उसका टर्नओवर आज यहाँ 5 लाख का है तो 25 लाख हो जाएगा 6 महीने में, और 1 साल में बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ होने में टाइम मिलेगा। दिस इज कॉल्ड ए रियल एंटरप्रेन्योरशिप। ट्रेनिंग ली, नॉलेज लिया, उसके बाद MSME का एडवांटेज लिया और अपने बिजनेस को ग्रो। ये थॉट, ये विजन, ये मोटो, ये एम, ये ऑब्जेक्ट आपका भी होना चाहिए। नौकरी करेंगे आप, 2-4-5 लाख रुपए का पैकेज मिल जाएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टुडे, आज की लाइफ में, या 5-7 लाख रुपए का पैकेज करके और नौकरी कर लेंगे IT फील्ड में कहीं, तो अपने बीवी बच्चे को कार, गाड़ी, बंगला बना लिया जिंदगी में, दैट इज एनफ। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जो अचीव करता है, हाँ, वो एक सर्विसमैन क्वालिटी कभी नहीं करता। आप जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनिए। आप एक व्यवसाय खोलेंगे, 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, इससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। तो डियर फ्रेंड्स, हमेशा जॉब प्रोवाइडर बनने की कोशिश करिए। हम 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट, 10 के बाद हो सकता है आपका काम बढ़ जाए, आप और ऑटोमेशन करो और अपग्रेड करें फैक्ट्री को, 20 को करें, 50 को करें। क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री आज से 25 साल 30 साल पहले खुली थी, उन्होंने बहुत छोटे अमाउंट से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। मैं कुछ स्टोरी आपसे बाद में शेयर करूंगा, सक्सेस स्टोरी। बिजनेस इंक्यूबेशन स्कीम आपके कॉलेज को हमारे यहाँ से अप्रूव हुई है, BIHI। तो HI में आप अप्रूव्ड है। पर आइडिया हम आपको, आपके स्टूडेंट को, आप स्टूडेंट के लिए ओनली पर जो भी आइडिया, इनोवेशन या कोई थॉट आपकी है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रोटोटाइप में डेवलप करने के लिए, आइडिया को कमर्शलाइज करने के लिए 15 लाख का ग्रांट देते हैं। स्टार्टअप, बीइंग ए स्टार्टअप, कि आप अपना व्यवसाय चालू करिए, आपके दिमाग में जो आइडिया था उसको इम्प्लीमेंट करिए, उसको कमर्शलाइज प्रोडक्शन करिए और मार्केट में लॉन्च करिए। यदि ये आपका आइडिया नेशनल लेवल पे कमर्शलाइज किया जा सकता है तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME 1 CR की सीट फंडिंग देने का भी प्रोविजन इसमें
देती है। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इनकैश द बिजनेस इंक्यूबेटर स्कीम, जो आपके कॉलेज में सेटअप हो चुका है। और ऐसे हमने बहुत से कॉलेज देखे हैं जहाँ बच्चों की क्यू लगी रहती है और न्यू न्यू आइडिया जनरेट करती है। उनका इंक्यूबेशन हब बना हुआ है, एक पेवेलियन बना रखा है उन्होंने। रिसेंटली आईआईटी इंदौर को ही हमारे 4 आइडिया को अप्रूवल मिला है। महाकाल कॉलेज उज्जैन, उनके भी एक आइडिया को अप्रूवल मिला है। तो डियर फ्रेंड्स, कॉपी पेस्ट नहीं करिए, गूगल से कॉपी पेस्ट मत करिए। जो थॉट है, जो आपके दिमाग में आ रहा है, आप बोलो कि हमको हवा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना है, बट हाउ, कैसे? यदि आप ये कर सकते हैं तो नो डाउट यू कैन गो है। डेली एक ना एक आइडिया आ रहा है, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो रही है, न्यू इनोवेशन हो रहे हैं और सक्सेस हो रहे हैं, लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। चाहे एग्रीकल्चर बेस का हो, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड का हो, चाहे मेडिकल फील्ड का हो, वट एवर इट में भी आपके दिमाग में जो थिंक आता है जस्ट वो है। आईटी फील्ड के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने एमओयू किया है कि 5 CR की तक का लोन यस बैंक किसी स्टार्टअप को सॉफ्टवेयर कंपनी डेवलप करने के लिए, आईटी फील्ड में काम करने के लिए वो देने के लिए तैयार। हमारी मीटिंग हो चुकी है, उनके यहाँ एमओयू है। इसके पहले जो हमारे मंत्री जी थे, उन्होंने एमओयू भी किया था और काफी लोग इसका एडवांटेज ले रहे हैं। आप में से बहुत से बच्चे सीएस के यहाँ मैं देख रहा हूँ आईटी फील्ड से हैं, और उनके दिमाग में ऐसा कुछ आता है, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट है, तो ये दे आर वेलकम टू मी। मैं बात करूंगा यस बैंक से, या पीएनबी भी आपको 10 करोड़ तक का लोन देने के लिए आज ही हमारी मीटिंग हुई है, वहां से भी आपको प्रोविजन मिल सकता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें हमारे नंबर ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर निकलते हैं। 30-35 दिन की फुल डे ट्रेनिंग हम देते हैं। गारमेंट्स मैन्युफैक्चर 20-25 दिन में, 30 दिन में हम आपको 20 काइंड ऑफ गारमेंट्स, चाहे किड्स गारमेंट्स हो, चाहे वुमेन गारमेंट्स हो, या जो भी बनते हैं वो बनाना सिखाते हैं विद प्रैक्टिकल कटिंग टेलिंग एवरीथिंग। बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, बेकरी प्रोडक्ट मोर देन 25 प्रोडक्ट डेली बनाते हैं, अचार, जैम, जेली, बेकरी कुकी और केक फेक जो भी रहता है। उसमें से वो एंटरप्रेन्योर अपने घर जाने के बाद अपने घर से पड़ोसियों को केक बना के सेल करना चालू करते हैं। 2 सिलाई, 1 सिलाई मशीन रख के पड़ोसियों के कपड़े और मार्केट में इनिशिएट करते कि हम ये काम करते हैं। और देखते देखते ऐसे 5-7 एंटरप्रेन्योर हमारे हैं अभी, जिन्होंने हमारी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो, नाम, पता, एड्रेस दिया हुआ है कि 30,000 40,000 से चालू किया था काम, आज 10 लाख और 15 लाख और 20 लाख का भी टर्नओवर 1 साल 2 साल में कर दिया है। तो वो दिन दूर नहीं कि वो आदमी, वो बच्चे, वो लड़की जिसने 20,000 30,000 रुपये से काम चालू किया था 2 साल पहले, आज 5-7 लाख का कर रही थी, वो 25 और 50 लाख का भी कर ली। कोई बड़ी चीज नहीं, अपॉर्चुनिटी को इनकैश करेंगे बच्चे और बस डे बाई डे बढ़ते जाएंगे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, और मैनेजमेंट में एक्सपोर्ट के ऊपर मोर देन 200 इंडस्ट्रिस्ट को हमने मोटिवेशन किया कि आप एक्सपोर्ट करिए, और उसमें से ऐसा मोर देन 20-25 लोगों ने उसमें आईसी को डीजीएफटी रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसीड कर दिया है। हो सकता है वो अभी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसके साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, कोई भी प्रोडक्ट आप बनाएंगे तो उसका ट्रेडमार्क जरूर लीजिए। 10,000 रुपये रिइंबर्समेंट मिलता है। यदि आपका कुछ न्यू आइडिया है तो उसको पेटेंट कराइए। डोमेस्टिक के लिए 1 लाख रुपीज, इंटरनेशनल के लिए 5 लाख रुपीज का प्रोविजन है। आइडिया, न्यू आइडिया होना चाहिए आपका। जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, स्टेट गवर्नमेंट ने ओडीओपी स्कीम निकाली है। हर डिस्ट्रिक्ट में 1-1, 2-2 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं, कहीं पे 3 भी किए गए। तो उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने का अपडेट क्या है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? पिछले 75 साल से किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई आइडेंटिफाई नहीं प्रोडक्ट। ड्यू टू आत्मनिर्भर भारत, हमारी सरकार का विजन है कि हम हर फील्ड में आत्मनिर्भर बने। ऐसे इंडिया में मोर देन
700 समथिंग डिस्ट्रिक्ट है नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली। यदि छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया गया और जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे, यहाँ 3-3, 4-4 भी किए गए। जबलपुर से 3 प्रोडक्ट किए हैं, मटर, गारमेंट्स है और IT। तो इस तरह से 800 प्रोडक्ट, 900 प्रोडक्ट यदि इंडिया में आइडेंटिफाई हो गए हर डिस्ट्रिक्ट से, और उनका फोकस एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन मिल गया तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो मैं समझता हूँ कि 2 साल में वो स्टेट लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा, 3 साल में मिलेगा कि ये इस डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट है, रतलामी से रतलाम का है, इस तरह से। या इंदौर का नमकीन है, वॉटेवर में भी लेदर टॉयज है, जो भी है, हर डिस्ट्रिक्ट से 1-1, 2-2 प्रोडक्ट उभर के आ जाएंगी। हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, 8 साल बाद ये नेशनल लेवल पे एक्सप्लोर हो जाए, ये यहाँ का ये प्रोडक्ट है, रिकॉग्नाइज है और क्वालिटी प्रोडक्ट है, क्योंकि आपका फोकस सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर है। देन वी कैन गो टू द एक्सपोर्ट मार्केट आल्सो। हम उसको एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं जिससे हमारे देश की इकोनॉमी एंड GDP इंप्रूवमेंट होगी, बढ़ेगी। तो आत्मनिर्भर कब बनेंगे, जब हम अपना प्रोडक्ट, अपना डिमांड पूरी करने के बाद दूसरे देशों को उसकी सप्लाई कर सके। स्किल हमारे यहाँ है, आर्टिजन ग्रुप हमारे यहाँ है, मैन मशीन मटेरियल हमारे पास है, रॉ मटेरियल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम पीछे हैं, डिपेंडेंट हैं। भारत सरकार के 358 आइटम्स ऐसे हैं जो रिजर्व है। किसी भी CPSU मिनिस्ट्री को परचेज करने के लिए वो 358 आइटम SME, स्मॉल एंड माइक्रो यूनिट से परचेज करना है, ठीक है। लेकिन CPSU फुलफिल नहीं कर पाती वो कोटा। 25% उनको टारगेट है, 3% वुमेन एंटरप्रेन्योर, 4% SC/ST से, ये PPP स्कीम है हमारी, फिर भी पूरा कोटा नहीं हो पाता उनका। अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट रिजर्व है वो इंपोर्ट हो रहा है। इट इज सरप्राइजिंग। भारत सरकार ने जो 358 आइटम्स रिजर्व कर रखे हैं कि ये आइटम केवल माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट ही मैन्युफैक्चर करेंगी और ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या CPSE को सप्लाई करेंगे, फिर भी वही 358 आइटम में कुछ आइटम ऐसे हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसके तहत 45 आइडेंटिफाई प्रोडक्ट किए गए जिनकी मनी वैल्यू 100 CR से 800 CR है, जो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या हमारे एंटरप्रेन्योर है, हमारे यहाँ के स्टूडेंट या उद्यमी उन प्रोडक्ट को नहीं बना सकते? वो भारी कॉमन प्रोडक्ट है, इज नॉट रॉकेट साइंस, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं समझता हूँ स्ट्रीट लाइट फिटिंग्स कुछ नहीं है, असेंबलिंग ऑफ लाइट है, फिर भी हम इसका लगभग 300 करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं। नट बोल्ट, UPS, स्टेबलाइजर, आर्म एंड वाइपर, कार वाइपर, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है। 45 तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं आप, जिसमें DPR बनी है और एक नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल की क्वालिटी कैसे मैनेज करना आपको, वो सब दिया हुआ है। आप उसको रीड करें और यदि आपको लगता है कि आपका एंथुसियाज्म है एंटरप्रेन्योरशिप करना, तो उन 45 में एक भी आइटम आप सेलेक्ट करके इंडिया की डिमांड फुलफिल कर सकते हैं, तो इट इज एप्रिशिएबल और आई प्राउड ऑफ यू कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपना उद्यम लगाइए, फाइनेंस हम दिलाने की गारंटी लीजिए। डिजाइन क्लिनिक है आपके प्रोडक्ट को एक अच्छा लुक देने के लिए, IIT अहमदाबाद के साथ हमारा MOU है, तो आप करवा सकते हैं। जीरो डिफेक्ट, लीन मैन्युफैक्चरिंग, नंबर ऑफ स्कीम, यू कैन गो अवर वेबसाइट एंड चेक। अब मैं 2-3 सक्सेस स्टोरी शेयर कर देता हूँ बहुत शॉर्ट में। आपने BTW का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो गूगल में देख लेना। बिट्टू टिक्की वाला, ये दिल्ली का एक चाट का ठेला लगाने वाला आदमी था। 30 साल पहले फुटपाथ पर चाट बेचता था लाजपत नगर में। उसका माल क्वालिटी अच्छी थी, काफी अच्छा सोर्स था, मतलब सप्लाई थी सब जगह। धीरे धीरे काफी प्राउड हुआ, उसने एक छोटा व्यापार चालू किया, इंडस्ट्री लगाई लॉरेंस रोड पे, और पिछले 30 साल से इंडस्ट्री चला रहा है।
अब वो टिक्की के साथ साथ ब्रांड उसका वही है, बिट्टू टिक्की वाला, BTW ट्रेडमार्क वही है, लेकिन उसने स्वीट डिश, दही बड़े, मिठाई सब कुछ खोल लिए। वर्तमान में उसने अपना USA और UK में भी आउटलेट खोले। दिल्ली में तो 5-6 आउटलेट है, बहुत अच्छे मार्केट में फ्रेंचाइजी दे रखी है। मैंने खुद उसके यहाँ जो राजस्थान का कुछ अच्छा एक स्वीट डिश होती है, घेवर क्या बोलती है, घेवर, बहुत अच्छा स्वीट डिश होता है। लोग बोलते थे कि राजस्थान में मिलता है, लेकिन बिट्टू टिक्की वाले का इज द बेस्ट क्वालिटी। लोग बोलते दही बड़े बहुत अच्छे मिलते हैं कई जगह, लेकिन आप कभी बिट्टू टिक्की वाले का खा के देखिए उसकी क्वालिटी क्या है। तो उसने ऐसे ही नहीं कि अपने क्वालिटी को, वैल्यू को अपग्रेड करते, चाहे वो टिक्की में हो, चाहे दही बड़े में हो, चाहे स्वीट डिश में हो। अब तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है उसके यहाँ, और हम जैसे, आप जैसे IIT और BTech MTech लड़के उसके यहाँ फूड टेक्नोलॉजी की नौकरी कर रहे हैं। लॉरेंस रोड में बहुत अच्छा टर्नओवर है उनका, और ये हमारी एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी थी। दिल्ली में ऐसी बहुत सी स्टोरी है हमारे नजर के सामने, जिन्होंने PMEG पे 10-20 लाख रुपए लोन लिया, आज वो 50 लाख 60 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं और अपनी इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं। उद्योगपति हमेशा दुखी रहता है, कार खरीदेगा, बंगला खरीदेगा, उसकी कमी पूरी कभी नहीं होगी, लेकिन पैसा भी उतना भरपूर कमाता है। हमारे इंदौर में भी बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। 3 महीने के अंदर अभी एक बच्चे ने हमारे यहाँ आया था कि सर मैं कैंट का RO सर्विस सेंटर खोलना चाहता हूँ। तो उससे पूछा करते क्या हो? सर मैं कैंट में सर्विस करता हूँ, उनका RO घर घर जाके सुधारता हूँ, पूरा नॉलेज है। हमने प्योर एड और दूसरी कंपनी का सब वो भी सुधार लेती है। उसके बाद स्किल थी ना, ठीक है क्या करोगे? हमने घबराया तो कहने हैं उसको प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में अप्लाई कराया। एजुकेटेड था, BCom था, स्किल थी, सब कुछ था, पूरा डिटेल भरने के बाद बाकायदा उसका सिलेक्शन हो गया। अभी 3 दिन पहले उसका पेपर बैंक पहुंच गया। उसने 8 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बोर्ड बनाया था। बैंक ने बोला हम आपको 6 लाख रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे देंगे लोन, और 2 लाख रुपए की CC बना देंगे, जिससे आपको एज एंड व्हेन पैसे की जितनी जरूरत पड़े आप हमसे क्रेडिट लीजिए, अपना सामान खरीदिए, स्पेयर पार्ट्स खरीदिए और हमारा इंटरेस्ट के साथ पे करते जाइए। विद इन 3 मंथ्स में, 3 महीने में, एक स्किल लेबर जो दूसरी कंपनी में काम कर रहा था वो स्वयं का उद्यमी बन गया। वो दिन दूर नहीं डियर फ्रेंड कि आज उसने खोल लिया अपना RO प्यूरिफायर सिस्टम, वाटर सोल्यूशन। कल वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इनका EMC भी लेना चालू कर, और जिस दिन उसको काम बढ़ जाएगा तो वो दिन दूर नहीं कि 2-4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे कि जाओ घर घर सुधार के आओ। तो ही बिकम एज ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग थिंक करिए, विजन बनाइए, टारगेट बनाइए, आपको करना क्या है, और स्टेप्स बनाइए। स्टेप्स यदि आपने बना लिए, 10 स्टेप बना लिए, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, मार्केटिंग, फाइनेंस और क्वालिटी अपग्रेडेशन है, जो भी है, क्वालिटी पैरामीटर्स, लाइसेंस कहाँ से लेना, सब स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करते जाइए। 3 महीने 4 महीने में आप देखेंगे आप अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, और 2 साल के अंदर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। लंबा खींच दिया हमने। Thank you very much, Shri DC Sahu Saab. I hope you might have got a glimpse of what MSME is doing through the motivation speech of Shri Director Saab. And if you want to go go through our schemes which the sir has focused on, so you can go to our website, that is dcmsme.gov.in. So without taking so much of time, now I think we can move through one of the videos which our ministry has prepared to motivate you. Right? दिल में हौसले थे, आंखों में सपने, लेकिन न मंजिल दिख रही थी न रास्ता। आइए देखते हैं इनका सफर, जो किसी भी नए युवा उद्यमी को जोश
प्रेरणा और नई दिशा देगा। अगले महीने की 17 को ओरछा जाना है, बच्चों की शादी है, छुट्टी ले लेना और सर्टिफिकेट करवा। मुझे भी नहीं जाना। ऐसे कैसे नहीं जाना? और ये नहीं चलेगी यहाँ पे। आबा मॉर्निंग मॉर्निंग ये वाला है, ले जाएगा लैपटॉप हो गया ना। सबसे पहले तो कहूँगा जिस स्पीड से तुम बढ़ रहे हो ना, भाई ऑप्शन तो इस साल तुम ही लोगे। अच्छा, मुझे लगता है कि हमें सेल्स चैनल और बढ़ाना चाहिए। क्या कहते हो? करो क्या? करते हैं पहले डिस्कस। अरे रतेन, क्या सोच रहे हो? इसलिए वो अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहा था सर। कहा ना, करते हैं पहले डिस्कस। बात है फाड़े को डिस्कस करते हैं। कोई एक लाइन चिपका देगा और देख लेना, फ्राइडे की छुट्टी को कर लेगा। तो क्या करेगा? करूंगा क्या? प्लान बनाऊंगा। तो हमेशा प्लान बनाता, फायदा उसी का होता है। और तू? इस बार ऐसा क्या मतलब? प्लान है मेरे पास। छुट्टी की बात कर ली। मैं सोच रहा हूँ लौटते में एक दिन झांसी रुक लेंगे, उसी हिसाब से छुट्टी ले लो। मैंने नौकरी छोड़ दी है। छोड़ दी मतलब कोई दूसरी मिल गई? छोड़ दी मतलब छोड़ दी। अरे ऐसे कैसे छोड़ दी? अभी तो करियर शुरू हुआ है तुम्हारा। मुझे पता था आप ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करोगे तो और क्या करो? हार पहनाऊं तुझे? ये है आजकल के बच्चे, 4 दिन हुए नहीं, काम पे गए और छोड़ दिया। करना क्या चाहता है तू? पता है तो है, मैं खुद का बिजनेस करूंगा। बिजनेस? हाँ। क्या जानता है तू बिजनेस के बारे में? अरे बच्चों का खेल है क्या? पापा, अपना रहने दे, मैंने डिसाइड कर लिया है। सिर्फ अपने बारे में सोचा या बाकी घर परिवार का भी ध्यान है तुझे? क्या रहने दूं? तुम जानती भी हो क्या बोल रहा है ये? क्या कह रहा है ये? अब मैं इसकी एक नहीं सुनूंगा आज के बाद। अरे क्या शांत हो जाऊं? कुछ भी अनाप शनाप बोलता है। रतन, हाँ, क्या तुमने सच में नौकरी छोड़ दी है?
आवा हाँ? ये तुमको भी मुश्किल था नहीं? ऐसा नहीं है। रहते हैं। आगे आगे परिवार भी तो बढ़ेगा तब। आवा मैनेज हो जाएगा। अरे नितिन कैसा है? ऐसे उदास क्यों बैठा है? हाँ? ऑफिस में बड़े चर्चे तेरे। अच्छा तू है इतना उदास क्यों बैठा? यार रिजाइन तो कर दिया है, नया बिजनेस सेटअप करना समझ में नहीं आ रहा यार, किसके पास जाऊं, कहाँ से शुरू करूं, कोई गाइडेंस भी नहीं है। भाई तुझे ना एक मेंटोर की जरूरत है और एक प्रॉपर गाइडेंस की। हाँ ऐसे मैंने सुना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में ऐसी कई योजनाएं हैं जो आपको आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करती है। उसमें से एक है पीएमईजीपी। पीएमईजीपी, हाँ पीएमईजीपी यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तू एमएसएमई की वेबसाइट पे जा, वहां सर्च कर एंड आई एम श्योर तेरे को तेरी सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। अब ऐसे उदास मत बैठ, चल आजा, चल ताली दे, चल आजा। सच में नौकरी छोड़ दी। ये जरूरत है। अब ऐसे उदास मत बैठ, चल नमस्कार मैम। जी रतिन जी, पढ़ा मैंने आपका प्रपोजल। एक बात बताइए, खिलौने ही क्यों? ये मार्केट तो ऑलरेडी भरा हुआ है, इतना कंपटीशन है। मैम कंपटीशन है क्योंकि डिमांड है। वो सब तो ठीक है, मगर बनाएंगे कैसे? हम जिन खिलौनों से खेले हैं अब उनकी जगह इंपोर्टेड खिलौनों ने ले ली है, इसलिए सबसे पहले मैं अपने ट्रेडिशनल खिलौनों को रिवाइव करूं और इस मार्केट का सप्लाई चेन नेटवर्क ऑलरेडी अवेलेबल है। मैम अपने देश के खिलौनों की खासियत यही है कि वो सिर्फ खेलने के ही नहीं सीखने के भी काम आते हैं। और लेबर? अपने शहर में इतने कारीगर हैं जो घरों में खिलौने बना रहे हैं, ऊपर से 2 स्किल सेंटर्स भी हैं, सारी लेबर वहीं से ले लूंगा। कितना प्रोडक्शन करें? फिलहाल तो डोमेस्टिक मार्केट पर ही फोकस रहेगा। ट्रस्ट मी मैम, ये अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है। दैट्स ट्रू। एक बढ़िया टॉय किट देना। The award for most promising entrepreneur of the year goes to Mr. Rati. तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी।
जिंदगी की तस्वीर आत्मविश्वास से है बदलती। थैंक यू। सफलता की ऐसी कहानियां आज देश के कोने कोने से आ रही हैं, जहां युवा एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं का पूरा लाभ उठाकर सफल उद्यमी बने। एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से अपना उद्यम लगाइए, समृद्ध भारत के निर्माण के लिए आगे आइए। आप भी अपना उद्यम स्थापित कर नए समृद्ध भारत का निर्माण कीजिए। Now, I hope you might have liked the video which I have shared. And now I will request Pallavi Vyas, and she is owner of the Shanta Farms. And I would request to share her entrepreneurship journey with all you people so that you can get motivation through it. Pallavi Vyas, madam. सूर्यकांत सर, शायद आपको अनम्यूट करना होगा पल्लवी मैडम को। यस, कर रहा हूँ। पल्लवी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यू आर को होस्ट नाउ, यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो एज वेल। Yes, ma'am. It's good enough. Thank you so much MSME DI कि आपने मुझे इनवाइट किया। Thank you अनुज्ञा मैम, साहू सर, and whole MSME team, and thank you so much Medicaps for bringing up together कि आप सभी जो बच्चों को इतना encourage करते हैं एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के लिए, तो उसके लिए मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। और आज हम भारत का आज़ादी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और उसमें मतलब सब हम एक आत्मनिर्भर भारत की ओर जब कदम बढ़ा रहे हैं, तो हम मतलब सभी यूथ मतलब हम लोग ये सब चाहेंगे कि सभी यूथ एक अपना खुद का उद्यम खड़ा करें, और उसके लिए भारत सरकार की तरफ से जो सारी योजनाएं उन सब का लाभ ले। मैं मेरी एक जर्नी की मतलब एक एंटरप्रेन्योर जर्नी की छोटी सी शुरुआत, छोटी सी कहानी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मतलब मैंने एक सिंपल हाउसवाइफ से मैं डेयरी और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मेरी पहचान बनाई है। कैन यू हियर मी ब्रजेश सर? आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, yes, Pallavi ji, we can hear you very well. You can continue. Okay now। तो मतलब मेरा ये सोचना है कि यदि हम एक सही नीयत से और सही सोच के साथ यदि हम किसी कार्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो मतलब सारे प्रयास सफल होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2013 में हमने शांता ट्रेडेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। वो हमारा एक्सपोर्ट यूनिट था। तब हमने छोटे से हमारे कुछ मतलब जो हमारे फ्रेंड्स यूएस में रहते थे उन्हें कुछ एक्सपोर्ट का सामान हमने सॉर्टिंग भेजना शुरू किया। तो क्योंकि वहाँ अपने इंडियन आइटम्स की बहुत सारी डिमांड जनरेट होती थी, तो इस थॉट से हमने शुरू किया। मीनवाइल उस वक्त के टाइम पीरियड में ही जब मेरी मदर इन लॉ को कैंसर डिटेक्ट हुआ और वो उनकी डेथ हो गई कैंसर से, तब ये चीज हमारे मन में घर की कि हमें एक ऑर्गेनिक और प्योर पे काम करना है। तो इस नियत से हमने काम शुरू किया। और क्योंकि बाहर कंट्रीज में जब हमने देखी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की इतनी डिमांड है, तो हमने ये देखा कि हम हमारे शहर को हम क्या दे सकते हैं। तो हमारे शहर में हमने शुद्ध दूध से शुरुआत की, क्योंकि मिल्क गाय के द्वारा हम ऑर्गेनिक मैन्योर ले सकते थे, खाद ले सकते थे, और ऑर्गेनिक जो दूध हम घर पहुंच सेवा के साथ हम लोगों को उपलब्ध करा सकते थे। तो ये हमने 2016 में इसकी शुरुआत की, जो कि हम मध्य प्रदेश का सबसे पहला फार्म था, स्टेट ऑफ आर्ट डेयरी फार्म था। तो इस तरह से हमने कार्य की शुरुआत की, और आज शांता फार्म को हम डेयरी और एक ऑर्गेनिक ब्रांड के रूप में
न केवल देश में और न विदेशों में भी एक अपनी एक पहचान बना चुका है। और इस जर्नी को शुरू करने के पीछे मेरा एक मूल उद्देश्य एक ये रहा, जो मेरी एक पर्सनल स्टोरी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ना हमारे पास फंड था, न एग्रीकल्चर का नॉलेज था, न गाय का नॉलेज था, कुछ भी नहीं था, बट एक पैशन था कि नहीं हमें कुछ काम करना है और एक साफ नीयत और सीखने की लालसा लेकर हम कार्य में आगे बढ़े। फेलियर्स तो बहुत सारे होते हैं, हर क्षेत्र में होते हैं, पर उन फेलियर्स से हमें सीख लेना चाहिए कि हम कैसे हम आगे बढ़े और हम इस कार्य को करते रहें। इसी सतत प्रयास ने हमें आज वो मुकाम दिलाया कि आज 6 साल बाद भी आज शांता फार्म एक सर्वाइवल मोड पे है। आज हम शांता फार्म के थ्रू क्रॉप लाइफ स्टॉक टेक्निक के द्वारा हमने ऑर्गेनिक ब्रांड डेवलप किया। हमारा ऑर्गेनिक के आज हमारे साथ 2000 किसान जुड़ चुके हैं, जो मतलब मध्य प्रदेश के आसपास के गांवों से हैं। हमने अपना ब्रांड लेवल स्टैब्लिश किया क्योंकि हम डेयरी फील्ड में थे, तो हमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आई। और और इसी तरह हमने एक अभी एक न्यूट्रिशन पे आजकल हम एक कार्य कर रहे हैं, जो कि हम आंगनवाड़ी के साथ मिलकर हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मतलब जो शांता फार्म का ही प्रोडक्ट है, जो हमने मोरिंगा बेस्ड एक प्रोडक्ट है, जो जिसके द्वारा हम माल न्यूट्रिशन पे कार्य कर रहे हैं। जो बच्चों में आज की जो समस्या होती है, तो इस मुद्दे को हम उठा के और हम इस मुद्दे को इस जो मतलब न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। क्योंकि एक आज मेरा जो मैं इस फील्ड में क्यों आई, क्योंकि जब हमने शांता फार्म की शुरुआत की तो हमने देखा कि काऊ फॉडर, गाय का जो फॉडर है, उसकी लेस अवेलेबिलिटी है मध्य प्रदेश में। इस विजन ने जोर दिया कि हम फॉडर पे रिसर्च करें। फॉडर पे रिसर्च करते हुए हमने मोरिंगा जर्नी के बारे में जाना है कि मोरिंगा क्या होता है। मोरिंगा एज ए काऊ फीड पे काम किया। मोरिंगा एज ए न्यूट्रिशन डायनामाइट के रूप में हमने एक रिसर्च पेपर हमने इंटरनेशनल डेयरी एसोसिएशन की बुक में अपने पब्लिश करवाया। उसके बाद फिर जब हमने मोरिंगा पे कार्य किया तो हमने देखा कि ये न्यूट्रिशनल डायनामाइट के रूप में हम ह्यूमन कंजम्पशन के रूप में भी दे सकते हैं। और सेम टाइम पे जब कोविड आया, कोविड-19 के रूप में एक महामारी ने घर घर दस्तक दी, उस वक्त तो सभी व्यक्ति इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, प्योर की बात कर रहे थे, और हम ऑलरेडी इस पे काम कर ही रहे थे न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट पे। तो हमने इसको इन किचन कंजम्पशन लॉन्च किया, फिर इसको ईटेबल फॉर्म में हमने बनाया। मैं आप लोगों से ये चीज़ें इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कैसे हमने मतलब शांता फार्म, ठीक है, एक डेयरी फार्म था, हमने शुरुआत एक डेयरी फार्म के रूप में की। मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी की जो शुरुआत हुई है एक डेयरी एंटरप्रेन्योर के रूप में है। आज भी यदि पल्लवी व्यास शांता फार्म इनका नाम आता है तो एक डेयरी के रूप में आता है, डेयरी ब्रांड के रूप में आता है। बट आज मोर ओवर डेयरी के साथ हम ऑर्गेनिक, न्यूट्रिशन, इन सब में कार्य कर रहे हैं। और ये हमें डाइवर्सिफाई करने का, आज हम सर्वाइवल मोड में भी इसलिए क्योंकि हम नित नए हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, हम रिसर्च में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से करके आज मैं मतलब मध्य प्रदेश के कई स्टेट में काम कर रही हूँ। और आप शांता फार्म का शॉर्ट में आपको समराइज कर रही हूँ कि गूगल यूट्यूब करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको वैसे ऑनलाइन मिल जाएंगी। बट मैं चाहूँगी कि आज का युवा, आप लोग, क्योंकि कई हमारे मध्य इंदौर से जो लोग हैं वो आसपास के गाँव से हैं, और वो इस तरह से मतलब खेती, किसानी, पशुपालन उस क्षेत्र में अपना MSME के सहयोग से, भारत सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, उनके सहयोग से अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा वेंचर हो सकता है। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं क्योंकि गुड फूड और न्यूट्रिशन और क्वालिटी प्रोडक्ट की ज़रूरत सभी को है। हमारे भारत में जितना पॉपुलेशन है तो उसके कारण कंजम्पशन की कहीं, यदि हम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे तो हम कंजम्पशन की कई गुना गुंजाइश है। और यदि आप अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो एक्सपोर्ट का भी मार्केट बहुत अच्छा है। तो जस्ट डू स्टार्ट इट एंड
आप नौकरियों की तरफ कम सोचे। नौकरी में जरूरत है, नौकरियों की भी जरूरत है, परंतु अपना उद्यम लगाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप मोड में सोचें। बस यही कहना चाहूंगी। इससे ज्यादा तो अभी मैं क्योंकि बिकॉज आई एम इनटू ट्रैवलिंग, तो आप मेरे से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी किसी भी तरह की कोई हेल्प रहेगी तो आई एम डेफिनेटली अवेलेबल। थैंक यू सो मच। और कुछ यदि आप चाहें तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी मैम, थैंक यू सो वेरी मच मैम। आप ट्रैवलिंग करते हुए भी अपने एक्सपीरियंस को आपने शेयर किया। सो डेफिनेटली द पार्टिसिपेंट्स आर गोइंग टू कैच यू थ्रू ऑनलाइन। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सावनकर सर। Thank you very much, Madam Pallavi Vyas, Madam, for sharing your journey with us. And now I will request Shri Shivnarayan. मैडम कुछ कोई पेंडिंग है क्या एंट्री जिसको ऐड करने के लिए दिखा रहा हूँ? जठार सर, आप फीडबैक लिंक चैट बॉक्स पे डाल दीजिए। Madam, one entrepreneur is trying to join in our. Okay. Shri Shivnarayan Sharma. Basically, we have called him for this. सूर्यकांत सर, एक बार चेक कीजिए, शिव नारायण शर्मा जी ने ज्वाइन किया है क्या? नहीं मैम, नहीं किया है ज्वाइन। Okay, madam. Meanwhile, he is joining, है ना? Then we will play the video, second video of it, right? जी सर। ये है मितेश, एक नौजवान उद्यमी। ये एक उद्यम शुरू करने के लिए उत्सुक है, लेकिन पूरी जानकारी न होने के कारण इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें मिस्टर संभव दिखाई देते हैं, जो मितेश को आश्वासन देते हैं कि वो उसकी समस्या का समाधान खोजने में उसकी मदद करेंगे। उन्होंने मितेश को एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं का परिचय दिया। मैं आपको उन विभिन्न योजनाओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें सरकार ने आप जैसे उद्यमियों के लिए शुरू किया है। पहली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जो उन इच्छुक उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो एक मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में कंपनी स्थापित करना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए परियोजना लागत 25 लाख तक और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख तक हो सकती है। लेकिन सर, इस योजना में कौन आवेदन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष से अधिक है। पीएमईजीपी के तहत केवल नई परियोजनाओं को मंजूरी के लिए विचार किया जाता है। यह काफी आसान है। ऑनलाइन आवेदन कभी भी कर सकते हैं और जिसे राज्य केवीआईसी कार्यालय में जमा करा सकते हैं। आप www.kviconline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में जमा भी करा सकते हैं। ये तो वाकई सरल प्रक्रिया है। अब मैं उद्योग लगाने के अपने सपने को साकार होते देख सकता हूं। बिल्कुल मितेश, इसके साथ ही खादी और कॉयर के क्षेत्र में भी उद्यमियों के लिए अनेकों योजनाएं हैं। इनका उद्देश्य खादी, ग्राम और कॉयर उद्योग को प्रोत्साहन देना है, जिसके लिए तकनीकी और मार्केटिंग सपोर्ट के साथ साथ पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने की सोच है। इनके लिए किस प्रकार की सहायता उपलब्ध है और कौन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं? उन्हें केवल खादी और कॉयर की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना है। खादी और कॉयर व्यवसाय में लगे लोगों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सच्चे व्यवसायियों के रूप में हमें प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर अपनी श्रेणी में
सर्वश्रेष्ठ उत्पादन करना चाहिए। क्या हमें इस मोर्चे पर सरकार से कुछ सहयोग मिल सकता है? निश्चित रूप से। और इसके लिए एमएसएमई मंत्रालय प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन में सहायता प्रदान करता है। वो कैसे सर? देखो, मूल रूप से इस योजना के माध्यम से एमएसएमईज को उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। तो फिर इसका लाभ लेने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? एमएसएमई को चाहिए कि अपनी उद्यम पंजीकरण संख्या के साथ स्थानीय निदेशक एमएसएमई डीआई के पास अपना विधिवत भरा हुआ आवेदन जमा करें। वेबसाइट www.dcmsme.gov.in पर एड्रेस का विवरण उपलब्ध है। हम सभी गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करना चाहते हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग करना भी महत्वपूर्ण है। क्या कोई ऐसी योजना है जो इसमें हमारी मदद करेगी? हाँ, है ना, एमएसएमई मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस। ये योजना दो तरह से असिस्ट करती है, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए और राष्ट्रीय मंच देने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके, जिसमें यात्रा और प्रदर्शनी की लागत भी शामिल है। वाह, इनका लाभ कौन उठा सकता है? सभी एमएसएमई। एमएसएमई द्वारा प्रमोशन में जो पैसा खर्च होता है उसकी प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है। आवेदक एमएसएमई भुगतान के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्थानीय एमएसएमई डीआई कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करेगा। इसे नियत समय के अंदर डिसबर्स कर दिया जाता है। हमारे जैसे एमएसएमई उद्यमियों की मदद के लिए मंत्रालय द्वारा अन्य योजना क्या है? हमारे प्रधानमंत्री ने हमेशा एमएसएमई क्षेत्र में कौशल विकास के महत्व की वकालत की है। इस विजन को पूरा करने के लिए विभाग अपने कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमिता और कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय के पास हमारे लिए और क्या है? एमएसएमई इकाई का सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 24 हो गए पार्टिसिपेंट्स। मंत्रालय उत्पादकता बढ़ाने के लिए एमएससी की क्षमता निर्माण के लिए क्लस्टर विकसित कर रहा है। ये योजना क्लस्टर इकाइयों को कॉमन फैसिलिटी सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल प्रशिक्षण, गुणवत्ता विकास आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना में कौन आवेदन कर सकता है? उद्योग संघ और क्लस्टर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाद में क्लस्टर में मौजूद सभी इकाइयों को इन सुविधाओं के लाभ मिलते हैं। ऑनलाइन आवेदन www.dcmsme.gov.in पर भरे जा सकते हैं। आवेदनों की हार्ड कॉपी राज्य सरकारों या उनके स्वायत्त निकायों या एमएसएमई मंत्रालय के फील्ड संस्थानों के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। पर यह तो छोटी इकाइयां भी हैं। सरकार उनके उत्पाद प्रोक्योर भी करती है। कुछ इसके बारे में भी बताइए। आप सही कह रहे हैं। सरकार विभिन्न प्रकार के सामानों की सबसे बड़ी खरीदार है। एमएसई से खरीद का हिस्सा बढ़ाने की दृष्टि से सरकारी स्टोर खरीद कार्यक्रम शुरू किया गया है। एनएसआईसी एकल बिंदु पंजीकरण योजना SPRS के तहत एमएसई पंजीकृत किया जाता है और ऐसे पंजीकृत एमएसई सरकारी खरीद का लाभ पाते हैं। सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी निर्धारित आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ एनएसआईसी के किसी भी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर एनएसआईसी के कार्यालयों का विवरण उपलब्ध है। क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाली इकाइयों के लिए कोई विशेष दस्तावेजी कार्यवाही है? हाँ, आयात निर्यात करने वाली इकाई को विदेश व्यापार महानिदेशालय में पंजीकरण करा के 10 डिजिट वाला IEC कोड प्राप्त करना होगा। एक और व्यवस्था भी है जो हैंड होल्डिंग की मदद से छोटी इकाइयों को बड़ा बनाने में मदद करती है। इसका नाम है चैंपियंस। ये सिंगल विंडो सिस्टम
छोटी इकाइयों और आर्थिक रूप से कच्चे माल, लेबर, सरकारी स्वीकृतियां, सभी मामलों में एमएसएमई इकाइयों की सहायता करता है। एक और रजिस्ट्रेशन बहुत आवश्यक है, वो है उद्यम। यदि कोई एमएसएमई इकाई उद्यम के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे इसमें पंजीकरण करा लेना चाहिए। ये एक निशुल्क पंजीकरण है। चैंपियंस कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर इसमें आपकी सहायता करते हैं। तो आओ आप भी अपना उद्यम लगाएं और सफल उद्यमी बने। तो खुद की खोज में निकली, किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान होता है देश के अनगिनत एंटरप्रेन्योर्स का, जिनमें होता है कुछ कर गुजरने का जज्बा। आज देश में एमएसएमई उद्योग से जुड़े एंटरप्रेन्योर्स कामयाबी की नई दास्तान लिख रहे हैं, जिसके ऊर्जा स्रोत है प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई विशिष्ट योजनाएं जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, जो भारत को अब बनाएगा आत्मनिर्भर। भारत देश के सभी विद्यार्थी मित्रों को मैं कहता हूं कि हमारे एमएसएमई के माध्यम से नेशनल अवेयरनेस कैंप जो चले हैं उसमें आप सहयोग दीजिए। अच्छा उद्योजक, बड़े उद्योजक बनकर हमारा देश का उत्पन्न बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए आपकी सहयोग की आवश्यकता है। आप सभी जन बड़े उद्योजक होने के लिए मेरी तरफ से मैं शुभकामना देता हूं। उद्यमिता की एक बहुत ही प्रेरणात्मक कहानी है आगरा के सुमित कुमार की। एक गरीब परिवार से आने के बावजूद सुमित ने वो कर दिखाया जो सच में सराहनीय है। सिर्फ अपने दृढ़ सोच और जुनून के बल पर एक फैक्ट्री में लेबर का काम करने वाले सुमित ने वहां से सीखे स्किल और अपने आत्मविश्वास से 2018 में सुमित एंटरप्राइजेस की शुरुआत की, जो प्लास्टिक के सफाई करने वाले सामान की मैन्युफैक्चरिंग करता है। लेकिन इस राह में भी चुनौतियां कम नहीं थी। पहले मैंने 2 लाख से काम चालू किया था, तो चलते चलते 2 साल हो गया मेरे को काम करते हुए। फिर डिमांडिंग बढ़ रहा था मार्केट का, तो मेरे को लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बैंक ने मेरे को लोन देने से मना कर दिया था। फिर उसके बाद में मैंने एमएसएमई डिपार्टमेंट के पास गया था। एमएसएमई डिपार्टमेंट की वजह से मेरा 4,11,000 रुपये का लोन सैंक्शन हुआ। आज मेरा हर 6 महीने का टर्नओवर है, लगभग 20 से 30 लाख रुपए समथिंग पहुंचता है। और फिर क्या था, एक छोटे से कस्बे से निकला सुमित ऊंची सोच लिए एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कर दिखाया कमाल। लेबर से मालिक बना हूं एनएसआईसी लोन की वजह से। भारत का सुदूर पूर्वी राज्य मिजोरम देश में चली एंटरप्रेन्योरशिप की लहर से ये भी अछूता नहीं है, और इसकी मिसाल है हेनरी सिंगूरा, एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जिसने इस खूबसूरत इलाके में मशरूम की खेती को एक सफल व्यवसाय बनाकर यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं। 2019 में स्थापित फूड माइक्रो लैब हेनरी के अपने स्थानीय लोगों के लिए कुछ करने के सपने को साकार किया, जिसमें केवीआईसी द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की भूमिका भरपूर रही। Mushroom is the main source of income in Mizoram. Being a startup, funding is the main problem we have faced, and I took PMAGP loan and having 35% subsidy. This helped me a lot in my startup. मशरूम की खेती और उसकी ट्रेनिंग लोगों को देकर आज हेनरी बने हैं एक सफल उद्यमी और पथ प्रदर्शक। ये है चेन्नई, अपने देश के प्रति लगाव और एक उद्यमी बनने का जुनून एक इंजीनियर और मैनेजमेंट ग्रेजुएट गौतम को 7 समुंदर पार ब्रिटेन से भारत आने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन उनके एंटरप्रेन्योर बनने का सफर इतना आसान नहीं था।
यहाँ तक कि कंपनी की शुरुआत करने के लिए उन्हें अपने मां के गहनों को गिरवी भी रखना पड़ा। आज उनकी एंटरप्राइज C2Z स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशन जैसे पार्किंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाती है। लेकिन उनके साहस को फिर साथ मिला एमएसएमई मंत्रालय के इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम का, जिसने मानो गौतम के बिजनेस को चार चांद लगा दिए। Right after I got the loan, I was exploring different things, and then I went to MSME and I went to NSIC, and then they said, if you want to promote your product elsewhere across the globe, you can use international cooperation scheme. And of course, we did get some decent revenue after the expo. आज गौतम के ब्रांड की पहचान देश विदेश तक पहुंच गई है। The schemes from MSME, NSIC, such as marketing, promotional schemes, international cooperation scheme, are making Make in India go global. भारत में एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर ने यहाँ की महिलाओं को भी काफी प्रेरित किया है, और इसका जीता जागता उदाहरण है बेंगलुरु की ये 3 महिलाएं। नारी शक्ति के रूप में श्वेता हरीश अपने 2 साथियों के साथ मिलकर 2021 में शुरू किया अनुग्रह इंटीरियर सॉल्यूशंस। कुछ नया करने की ललक और अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन को अपने व्यवसाय में लगाने के लिए ये 3 महिलाएं स्कूल, कॉर्पोरेट और घरों के लिए मॉड्यूलर फर्नीचर डिजाइन करती हैं और बनाती हैं। लेकिन इनके इस पूरे सफर में सबसे बड़ा हाथ रहा एमएसएमई मंत्रालय का। MSME team, they have guided us in the end-to-end implementation of this manufacturing unit. First thing is they have supported for this Udyam registration where we get a collateral-free loans. So all these schemes, they have educated us in the right way, and they have educated us also how to make use of it. इरादे बुलंद हो तो कुछ भी हासिल हो सकता है। ये महिलाएं आज उद्यमिता में नारी शक्ति का परिचय दे रही हैं। हर एंटरप्रेन्योर के अपने बिजनेस का एक मकसद होता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के नेक्सस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक मतीन जागीरदार का ख्वाब था कि उनके द्वारा बनाए गए चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोडक्ट्स देश के हर बच्चे तक पहुंचे। प्रोडक्ट्स इनोवेटिव और अच्छे क्वालिटी के थे। इरादा भी नेक था और बिजनेस के नजरिए से फायदेमंद भी। लेकिन दुविधा थी कि नेक्सस के प्रोडक्ट्स को कैसे देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। मतीन जागीरदार ने रुख किया भारत के एमएसएमई स्कीम की तरफ, जिसमें उन्हें उनके जैसे उद्यमियों के लिए क्रेडिट सुविधा के अलावा सरकारी टेंडर में भाग लेने के लिए खास प्रावधान दिया गया है। उद्यम रजिस्ट्रेशन के बाद मुझे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ हुआ, जैसे कि EMD एग्जेम्पशन मिला, वर्क एक्सपीरियंस एग्जेम्पशन मिला, टर्नओवर एग्जेम्पशन मिला। इससे मेरी कंपनी को आगे बढ़ने में बहुत फायदा हुआ। एक अच्छी सोच से शुरू की गई नेक्सस प्राइवेट लिमिटेड अब अपने एजुकेशनल प्रोडक्ट्स के जरिए भारत में बच्चों के संपूर्ण विकास में सहायक सिद्ध होगा। भारत के छोटे और लघु उद्योगों में हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की अलग ही पहचान है। उम्दा कारीगरी और मार्बल के प्रोडक्ट्स बनाने वाली आगरा की कंपनी नवल हैंडीक्राफ्ट्स 1996 से इस क्षेत्र में काम कर रही है। अपने पिता द्वारा स्थापित इस कंपनी के बागडोर 2002 में उनके बेटे नवल किशोर के हाथ में आ गए। ये जानते हुए कि मार्बल प्रोडक्ट्स की मांग इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा है, नवल किशोर एमएसएमई मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे स्कीम से जुड़ गए, जिससे उन्हें अपने मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए मेंटरशिप के अलावा प्रोडक्ट एग्जीबिशन के लिए एक नायाब प्लेटफॉर्म मिला। मैंने 2017 में पहला एग्जीबिशन लगाया था इंडो एक्सपो मार्ट नोएडा में। पार्टिसिपेशन में हमें 100% सब्सिडी मिलती है। हमारे पहले ही पार्टिसिपेट में हमें 7 बायर मिले, जो कि USA, UK और मॉस्को से थे। आज मैं एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, जिससे कि मैं अपने सारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। 5 लाख से 2 करोड़ का रेवेन्यू और 100 से अधिक लोगों को रोजगार। आज नवल हैंडीक्राफ्ट प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के आह्वान को चरितार्थ कर रहा है। भारत में एंटरप्रेन्योरशिप का दायरा काफी बड़ा हो चला है। मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर तक अगर जज्बा और जुनून है तो सब मुमकिन है। ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर है आगरा के देवाशीष प्रमोद कुमार, एक फिल्म मेकर।
फिल्म मेकिंग का एक बड़ा सपना लेकर निकले देवाशीष 2016 में अपनी कंपनी ट्रस्ट मीडिया एंटरटेनमेंट को बनाया, लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। सौभाग्यवश उन्हें नोएडा एक्सपो में भारत सरकार के एमएसएमई स्कीम के बारे में पता चला और उन्होंने अपनी फर्म ट्रस्ट मीडिया एंटरटेनमेंट को उस पर रजिस्टर कर लिया। उसके बाद तो देवाशीष की दुनिया ही खुल गई। तो मेरे को एनएसआईसी के एसपीआरएस के बारे में बताया गया कि आप सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम में रजिस्टर्ड हुई है। आज एसपीआरएस की वजह से हम डेली टेंडर फाइल कर पा रहे हैं कि आज मैं टीसी रीज के साथ कोलैबोरेटेड हूँ, जी म्यूजिक के साथ कोलैबोरेटेड हूँ। सर एनएफडीसी में हम लोग इनपैरेलमेंट है, लगभग 7 मिनिस्ट्री के साथ हम काम कर रहे हैं। आगरा एससी एसटी हब हमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहा है। देवाशीष की फिल्मी लगने वाली ये कहानी एकदम सत्य पर आधारित है, जिसमें भारत सरकार की एमएसएमई मंत्रालय की प्रमुख भूमिका है। दिल्ली के आदित्य सिंह ने मीडिया बिजनेस डिग्री 360 सॉल्यूशंस की शुरुआत की 2006 में। दौर था जब सरकार और कॉर्पोरेट हाउसेस अपने ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन और मार्केटिंग के लिए मीडिया कंपनीज को काम दे रही थी। अपने काम में निपुण और इनोवेटिव आइडियाज के साथ आदित्य भी नए नए क्लाइंट्स को एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग सॉल्यूशंस दे रहे थे। कमी थी तो सरकारी प्रोजेक्ट्स की, जिसके लिए टेंडर प्रोसेस अपनाया जाता है। और फिर आदित्य को पता चला भारत सरकार की एमएसएमई योजनाओं का। उद्यम रजिस्ट्रेशन करते ही हमें बहुत बड़ा अवसर मिला कि हम गवर्नमेंट टेंडर्स में 4 गुना भागीदारी कर सकते। हमें टेंडर फीस में और ईएमडी सबमिशन में एग्जम्पशन मिला। एमएसएमई मिनिस्ट्री की स्कीम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इसमें हमें बिना कोई सिक्योरिटी दिए 1 करोड़ की सीसी लिमिट मिली। और तो और पहले लॉकडाउन के बाद जब बिजनेस दोबारा खुला तो हमारे पास फिर से एक चुनौती थी, हमें एक पूंजी चाहिए। उस समय पे आत्मनिर्भर भारत पैकेज हमारे बिजनेस को रिवाइव करने में बड़ी मदद। आज आउटडोर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट एडवर्टाइजिंग के साथ डिग्री 360 सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड 95% गवर्नमेंट क्लाइंट्स के साथ काम कर रही है। एमएसएमई की इन योजनाओं से आज हम आत्मनिर्भर हैं। आज देश में एमएसएमई उद्योग के लिए संभावनाएं अपार है और इसको और भी तेजी दी है सरकार की योजनाओं ने। हर कदम पर एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा और मदद करने के लिए वो इनके साथ खड़ी है। जिस तरीके से युवा हमारे उद्यम लगाने के लिए आगे आ रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि आने वाले समय में हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है इसमें बेहद प्रगति होगी। आइए नए भारत के निर्माण में योगदान दें और अपने सपनों को पूरा करें। Now I would like to conclude this webinar, and I would request all the participants to fill Google feedback form, and I will request Medicaps to deliver vote of thanks. A very good evening, sir, and all the MSME team members, Director Sahu sir, Swankar sir, and all the team members of MSME who have taken this initiative and creating the awareness among the students and the atmosphere, the importance of entrepreneurship. As we know, during the independence, if each and everyone will put their efforts to get that independence, then only we have got that independence, right? So the same way, if we want to make a Atmanirbhar Bharat, then only the initiative taken by the government is not sufficient. Each one of us should contribute. A little initiative should be taken by each and everyone. Then only we can make Atmanirbhar Bharat and Sone Ki Churiya. So thank you very much MSME for taking this initiative, and I would request all the participants, is not this event is not only listening from one ear and putting it into the dustbin. This is to take the initiative. It's a high time now. We all have to contribute in the innovation, in the entrepreneurship, because it's a demand of the nation. And thank you all, my dear participants. And thank you, MSME. On behalf of Medicaps University, I thank you all. Thank you so very much. Thank you. Thank you.
Thank you.